جتنا یورپ سے ڈرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے قرآن سے بھی ڈر کر دکھائیں۔ یورپ کا قانون آپ کو کچھ نہیں کر لے گا۔ گالیوں کا رخ ذرا فرانس کی طرف بھی کر کے دکھائیں۔ قرآن نے جن کو بدکار اور بدکاروں کی اولاد قرار دیا ان کو بدکار کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ڈر لگتا ہے۔ ایک بات اگر مجھ کو اجازت ہو تو پوچھوں، طے کر نہ سکے جس کو حکیموں کے مقالات گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات کہ وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، یہ آدم خاکی جو ہے زیر سماوات، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات۔ آج آپ لوگ یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے قانون سے نہیں ڈرتے، افرنگ کے فرانس کے قانون سے ڈر رہے ہیں۔ کیسے کیسے حیا سوز اخلاق باختہ نقشے بنا بنا کر دکھاتے رہے، جہاں اصل گستاخی ہے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں۔ فریاض یا فرنگ، دل اویس یا فرنگ، فریاض شیرین یا پرویز یا فرنگ، عظمت آل و صحاب، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے آپ کا۔ نہ آپ کے شر سے، اس تحریک کے شر سے آل محفوظ ہے، نہ صحاب محفوظ ہیں، اور عظمت رسول کا تو اس تحریک میں نام ہی نہیں ہے۔ کتنے دھوکے دیں گے اس قوم کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کبر الاصاغر بموت الاکابر، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین۔ حضرات گرامی، امت مسلمہ اس وقت جس کرب سے گزر رہی ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ ہر پیر و جوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے تڑپتا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ مجبوراً ہی صحیح حکومتوں کو بھی بیان دینے کی ضرورت پیش آ چکی ہے۔ اس سارے حالات کے اندر اگر کسی کو کچھ پرواہ نہیں ہے، کسی کے سامنے گستاخی ہوئی نہیں ہے، تو یہ ایک ہی ٹولہ نظر آ رہا ہے جن کو ابھی تک کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ یورپ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی گستاخی ہو چکی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں اتنی بڑی جرت کا ارتکاب کیا گیا۔ آج ایک دفعہ پھر یہ جو میدان لگائے بیٹھے ہیں اور قائد ملت اسلامیہ ناموس رسالت کے عظیم علم بردار حضور کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ آپ کو گرفتار کروا کے اس وقت جو میدان لگا کر ہر جگہ گھوم رہے ہیں، عظمت آل، عظمت اصحاب کے نام پر، آل اصحاب کی ساری عظمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل سے ہیں۔ ان کو اتنا ہوش نہیں آ رہا کہ آل اور اصحاب کی عظمت پر جتنی کانفرنسیں ہیں، کسی کانفرنس میں عظمت رسول کی بھی بات کر دیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بھرپور توجہ دلائی تھی کہ آپ جو مینار پاکستان کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اس کانفرنس میں یورپ کو للکاریں۔ اگر وہ عزت رسول نام کی کانفرنس ہے تو عزت رسول کی بات کریں، اس سے بڑا موقع نہیں ہے عزت رسول کی بات کرنے کا۔ اتفاق سے آپ کی کانفرنس بھی انہی ایام میں آ چکی تھی اور موقع بھی عزت رسول پر بات کرنے کا تھا، لیکن تاریخ نے یہ پہلی دفعہ دیکھا کہ عرفان شاہ کی عزت کانفرنس ہے اور اس میں عرفان شاہ خطاب ہی نہیں کر رہا۔ آخر کیوں نہ خطاب کیا کہ یورپ پر تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوف ہے یورپ کا تمہارے دلوں کے اندر۔ ٹھیک ہے تمہاری نیشنلٹی ہے وہاں پر، وہاں تمہیں مراعات حاصل ہیں، وہاں چیریٹی کے نام پر تم نے کروڑوں روپیہ اکٹھا کرنا ہے، لیکن کہاں وہ باتیں، کدھر گئے وہ نعرے کہ عظمت رسول کے لیے خون کا ایک ایک قطرہ بہا دیں گے؟ آج ایک ٹانکی کی زبان نہیں ہلا سکتے آپ لوگ۔ جان دینا تو بہت بڑی بات ہے۔ جتنا یورپ سے ڈرتے ہیں، یورپ کے مراعات کا جتنا آپ کو لحاظ ہے، خدا کے لیے ایک دفعہ اللہ کے قرآن سے بھی ڈر کر دکھائیں۔ یورپ کا قانون آپ کو کچھ نہیں کر لے گا، خدا کا قرآن آپ کی گرفت کرے گا کہ جگہ جگہ میلے لگا کر بیٹھ جاتے ہو آل اور اصحاب کے نام پر۔ کسی میلے میں
अजमत रसूल की भी बात करके दिखाओ। और जो आप इतनी इतनी गालियां देते थे, उन गालियों का रुख जरा फ्रांस की तरफ भी करके दिखाएं। वहां तो हदीसें दिखाते थे उतुल्लिम बाद ज़ालिक सनीम। इस आयत को पढ़ के ही उस खन्नास पर फिट करके दिखाएं और ललकारें उस खन्नास को कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी असलियत क्या है। यह है असल, यह है कुरान की आयत। कुरान ने जिनको बदकार और बदकारों की औलाद करार दिया, उनको बदकार कहते हुए शर्म आती है, डर लगता है। कितना डर लगता है आपको। यूरोप से हैरान होकर रह गया हूं। आज फिर मुझे वो इकबाल का नक्शा याद आता है कि आपने यूरोप को क्या माना हुआ है। इकबाल कहता है कि जिस वक्त लेनिन खुदा के हुजूर पहुंचा तो उस वक्त उसने चंद बातें की थी। ए अनफुस आफाक में पैदा तेरे आयात, हक ये है कि है जिंदा ताबिंदा तेरी साथ। आज आंखों ने जो देखा तो वह आलम हुआ साबित, मैं जिसको समझता था कलीसा के खराफात। एक बात अगर मुझको इजाजत हो तो पूछूं, तय कर न सके जिसको हकीमों के मकालात। गुफ्तार के उसलूब पे काबू नहीं रहता जब रूह के अंदर मुतलातिम हो ख्यालात। ये इकबाल कहता है लेनिन ने पूछा कि या अल्लाह मुझे समझ नहीं आ रही, तेरी ज़ात तो बरहक है, लेकिन मुझे इतना इसराब है कि आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा आदम है कि तू जिसका है माबूद। ये आदम खाकी जो है ज़ेरे समावात, मशरिक के खुदावंद सफेदान फरंगी, मगरिब के खुदावंद दरिख्शिंदा फिलसात। इकबाल कहता है या अल्लाह इस मशरिक के पेशवाओं ने सफेदान फरंगी को खुदा समझा हुआ है। सफेदान फरंगी, ये चिट्टी चमड़ियों वाले फरंगी असल फ्रांस से ही है, अगरचे इसका इतलाक ज्यादातर बरतानिया पर होता है, लेकिन इसकी असल फ्रांच से ही फरंग और उससे ही फरंगी। आज आप लोग ये नक्शा पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के कानून से नहीं डरते, यूरोप से अफरंग के फ्रांस के कानून से डर रहे हैं। कुरान की आयत अतुल्लिम बाद ज़ालिक सनीम को इनके सामने नहीं बयान कर रहे, इन पर नहीं फिट कर रहे, और इधर मजलूमों पर कौन कौन सी बातें फिट कर दी। कैसे कैसे हयासोस इखलाक बाख्ता नक्शे बना बना कर दिखाते रहे। जहां असल बदमाशी है, जहां असल गुस्ताखी है, उनके सामने बात करते हुए आपकी टांगे कांपती हैं, पाकिस्तान में बैठते हुए एक बयान देने से जान जाती हैं। यह है वो नक्शा। मशरिक के खुदावंद सफेदान फरंगी, वो खुदावंद समझे बैठे हैं, उनको इतना डरते हैं फरंग से, फ्रेंच से, फ्रांस से, जितना खुदा से डरने का हक था। आपसे भरपूर मुतालबा है कि जितना आप तड़पते हैं स्टेजों पर अजमत आल और अजमत असहाब के नाम पर ये एक्टिंग करते हैं, कभी दिल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए भी तड़प कर दिखाएं और फ्रांस के खिलाफ आवाज बुलंद करें, अपनी तहरीक को सड़कों पर लाएं, जरा बताएं इसके रसूल की दास्तान। आज हमें तो ये नक्शा नजर आता है कि शायद इसी सारे माहौल के लिए आपने हुजूर कंजुल उलमा दामत बरकातुहुमुल कुदसिया उनकी गिरफ्तारी करवा के यूरोप के लिए पूरा मैदान खाली किया हुआ है, और खुद ऐसे बने बैठे हैं कि पाकिस्तान की सारी सुन्नियत की क़ियादत हमारे हाथ में आ जाए और हम इनको यूरोप की दहलीज पर जेर करके रख दें। हजरत आपकी सारी साजिशें अब कौम समझ चुकी है। इतना दर्द होता तो आज उनके खिलाफ आप आवाज उठाते। आप आवाज उठाना तो एक तरफ, जिन्होंने सदा से उनके खिलाफ आवाज उठाई थी और जिनकी आवाज पर यूरोप की चीखें निकलती थीं, आज उनकी आवाज को भी दबाने के लिए आपने एड़ी चोड़ी का जोर लगा लिया, और आइंदा भी मुसलसल सारा जोर इसी पर है कि यूरोप के गुस्ताखों के खिलाफ जो आवाज उठती थी उस आवाज को हर तरह से दबाया जाए। ये हैं आपके मकासद, ये हैं वो यूरोपीय मिशन जिसको हम बयान करते आए हैं। फरियाज या फरंग, दिल अवेस या फरंग, फरियाज शेरीन या परवेज या फरंग, आप सब कुछ अफरंग के लिए कर रहे हैं। फरियाज या फरंग, दिल अवेस या फरंग,
अफरंग की दिल आवेजी कर रहे हैं, उनके दिलों को खुश कर रहे हैं। हम आपसे भरपूर मुतालबा कर रहे हैं, मैदान में आए, और तो और कुछ नहीं कर सकते। चलें आपसे आजिज़ाना इल्तिमास करते हैं कि जितने अदब एहतराम से आपने रवाफिज को कहा था, आपने बेअदबी कर दी सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, आपने ये जुमले बोल दिए, वहां आपको सारी हदीसें भूल गईं, वो शिद्दत वाली, वो गालियों वाली, सब कुछ भूले बैठे थे। आप कहकर जिस तरह उनको मुखातिब कर रहे थे, चले मान लेते हैं फरंग से आपकी बड़ी मुराआत वाबस्ता हैं, बहुत ज्यादा वहां पर आपके ताल्लुकात हैं, उनको भी आप माई लॉर्ड कहकर ही मुखातिब कर लें। इधर आप कहते हैं उनको माई लॉर्ड कहकर कहें कि हजरत ये गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है, किसी तरह से मैदान में तो आए, हम आपको खुली छुट्टी देते हैं कि आप गालियां नहीं दे सकते, वो पता है आपकी मजबूरियां हैं, चले आपकी तरह आप उनको माई लॉर्ड ही कह दें, लेकिन मैदान में तो आए। लेकिन कहां ये बातें, दिल से तो आप तस्लीम किए बैठे हैं। अजमत आल व सहाब, ये बहुत बड़ा धोखा है आपका। ऐसी तहरीक है अजमत आल, अजमत असहाब की, कि जिस तहरीक से न आल महफूज है न असहाब महफूज हैं। क्या असहाब के साथ आज ये होना था? वो हवेलियां का पीर जिसका तारुफ आप ही मनाजरों में करवाते थे, कौन जानता था उस महबूबाबाद के पीर को? पाकिस्तान की सरजमीन में आपने ही मुनाजरा करके उसका तारुफ ये करवाया था कि ये पीर सहाबा को जहन्नमी कहता है, सहाबा को गालियां देता है। आज उस पीर के दरबार पर जाकर चादरें चढ़ाई, तकरीर की और नारे लगवाए, उसका फैजान जारी रहेगा। क्या फैजान था उसका? सहाबा को जहन्नमी कहना, सहाबा के खिलाफ भौंकना, यह फैजान जारी रहेगा। और आप तो समझते थे कि मैंने उससे रुजू करवाया, वो तो आपको रुजू करवा के भरमला इजहार किया कि आज ये जो चलकर आ गए हैं इनको भी हकीकत का पता चल गया। ये हकीकत आप समझ बैठे हैं। होना तो ये चाहिए था, उस जलसे में नारा लगता, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। हमारे मशाइख ने बड़ा बर वक्त कदम उठा लिया था इस नारे पर। आपके सारे शर को उलमा मशाइख भांप चुके थे कि खिचड़ी पकने क्या लगी है। जिस आस्ताने से सदा सहाबा के खिलाफ आवाजें उठती रहीं, अगर आप इतने मुतमईन हैं हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मसले पर, तो उनसे इकरार तो करवाते। अगर आपने रुजू का दावा किया है, कहते हैं कि मैंने उससे रुजू करवा लिया, उससे तो रुजू करवा लिया मुहय्यिद्दीन महबूब से, उसके अब्बे से कब रुजू करवाया है? उसके बाप ने किस वक्त रुजू किया था जो सहाबा को जहन्नमी कहता था माज़अल्लाह, और तरह तरह की गालियां देता था? इसलिए असहाब के नाम पर यह तहरीक बनाकर और असहाब को ही निशाना, कमाल की वारदात है। और आल के साथ जो आप कर रहे हैं कि आल का मर्तबा भी ऐसा बयान करते हैं जिससे आल ही राजी नहीं है। कोई कहता है सईदा पाक का मर्तबा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी बड़ा है, कोई कहता है मौला अली से बड़ा है। अजीब व गरीब तमाशे आपने शुरू किए हुए हैं। अजमतें सईदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वही हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता की हैं। तरतीब फजीलत की वही है जो 14 सदियों से उलमा बयान करते आए हैं। यह भी एक मुस्तकिल मौजू में हम आपको दिखाएंगे, और दिखाएंगे भी इंशाअल्लाह हजरत मुजद्दिद अल-फसानी के मकतूबात से दिखाएंगे, जिनका आप बड़ा तज़किरा करते हैं। वो सारा अलग मौजू है। बताना यह चाहता हूं कि ना आपके शर से, इस तहरीक के शर से आल महफूज है, ना सहाब महफूज हैं, और अजमत रसूल का तो इस तहरीक में नाम ही नहीं है। कितने धोखे देंगे इस कौम को।